السلام علیکم ایوری ون، میرا نام شاہد اقبال ہے۔ اس وقت ہم فیس بک پہ لائیو ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ثنا عباس، لاہور سے انہوں نے ہمیں جوائن کیے ہیں۔ یہ رائٹر بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں اور میڈیا پرسن بھی ہیں۔ آئیں انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان کی لائف سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ثنا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم فیٹ ایمان، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ ثنا آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ امیزنگ پیپل آف پاکستان اس پلیٹ فارم پہ آنا میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بیکاز کہ بہت ہی اچھی جرنی جو اسٹارٹ ہوئی ہے اور بہت ہی اچھے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اس طرح کے کہ جو یہ لائیو سیشنز ہونا شروع ہو گئے ان ڈیز میں، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ جی اچھا ثنا، یہ بتائیے گا کہ اپنی جو لوگ آپ کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں انٹروڈکشن کروانا چاہیں۔ اچھا، میں بیسکلی ایک ٹیچر تھی۔ ٹیچر بھی اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بچوں سے بہت پیار تھا اور پری اسکولنگ میرا پیشن تھا، اور وہاں سے پھر ڈفرینٹ ایکچولی میرے اندر نا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو سیکھنا اور کریز پیدا ہو جاتا ہر چیز کو سیکھنے کے بعد میں۔ کوئی چیز دیکھ لیتی نا، مجھے کیا ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کیوں نہیں آتا۔ پھر اس طرح میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک چیز کے اوپر میں نے فوکس کیا، پھر میں نے اس کے بعد ڈفرینٹ میڈیاز کو ٹچ کیا، ہوسٹنگ کی، کالمز لکھتی ہوں اور ایونٹس وغیرہ آرگنائز کرواتی ہوں ڈفرینٹ، اور جو میرا جس طرح کہتے ہیں نا کہ بس جہاں پر دل چاہے وہ چیز میں سیکھنا چاہوں اور سیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بیسٹ کر کے دکھا سکوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ثنا، یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور بورن ہیں، لاہور سے ہی ہیں، اور آپ کی پرورش وغیرہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ لاہور میں ہوئی ہے کہ کہیں اور سے آپ نے موو کیا لاہور؟ جی، میں تو لاہور سے ہی ہوں اور بیسکلی پیرنٹس میرا ایران سے ہیں، اور لاہور میں ہی میں پیدا ہوئی ہوں، یہیں سے ایجوکیشن حاصل کی، اور پھر لاہور اتنا ہی اچھا ہے کہ کسی اور شہر میں جب چلے جائیں تو بور فیل کرتے ہیں، پھر کہیں جانے کا سوچا بھی نہیں۔ ڈفرینٹ ایریاز کو گھومنے پھرنے، سیر و سیاحت کے لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر لاہور ہے۔ جی، تو اپنے ٹیچنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ ٹیچنگ آپ کی جو ہے کہاں سے اپنا کریئر کا آغاز کیا، اور وہاں سے میموریز شیئر کرنا چاہیں، کیسی ٹیچر رہی ہیں آپ؟ اچھا، ٹیچنگ کا یہ تھا کہ شروع سے میں نے دیکھا کہ میری دادو ان کا اسکول تھا، میری پھپھو نے اسکول بنایا ہوا تھا، اور میری پھپھو مالٹا میں بہت اچھا اسکول رن کر رہی تھی۔ شروع سے جیسے کہتے ہیں نا انہیریٹڈلی ایک چیز آپ کے اندر ہوتی ہے، تو وہ چیز میرے اندر بہت زیادہ تھی، اور ٹیچنگ کا مجھے بہت شوق تھا۔ میں آفٹر بی اے میرا اپنا اسکول تھا جس میں اپنی جو پری اسکولنگ کے لیے میں نے اپنا وہ بنایا تھا، بڑی کوشش کر کے اپنا ایز اے پرنسپل اس چیز کو میں نے ہینڈل کیا، اور شروع سے ہی بڑی بلیسڈ رہی ہوں اس معاملے میں کہ جس چیز کی خواہش کی وہ وقت سے پہلے میرے پاس تھی۔ میں اتنی چھوٹی ایج میں ایک اسکول رن کر رہی تھی، اور پھر وہ ایسے ایکسپیرینس گین کرتے 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 پھر میری شادی ہو گئی، پھر وہ سب چیزیں میں نے چھوڑ دی، کیونکہ فیملی جو میری پریفرنس ہے ہمیشہ شروع سے ہی رہی ہے، فیملی، بچے میرے چھوٹے تھے تب تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر جب بچے میرے بڑے ہو گئے، اسکول وغیرہ جانا شروع ہو گئے، اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اپنی گرومنگ کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی گرومنگ کے لیے دوبارہ سے ایجوکیشن کو اسٹارٹ کیا، پھر کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مجھے نئے نئے راستے بتائے، نئے نئے طریقے بتائے، بہت اچھے دوست ملے جنہوں نے ایسی لائن پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا جو مجھے شروع سے لگتا تھا کہ میں نے یہاں آنا تھا۔ تو اس وجہ سے میں چیزوں کو کرتی رہی، اور جیسے جیسے سب بتاتے گئے، اور یہ وہ چیز تھی جہاں شروع سے میں نے پہنچنا تھا۔ میرے اندر میرے ٹیچرز، میرے پیرنٹس، میری فیملی سب مجھے دیکھتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ یہ ویسے اس ٹائم تو شاید وہ ویسے مجھے کہتے ہوں گے کہ یار کوئی چھ بنے گی مگر آہستہ آہستہ مگر یہ چیزوں کو کرتے کرتے پھر ہر چیز میں نے ہاتھ ڈالا، رائٹنگ کی، پوسٹنگ کی، اور اب ماشاءاللہ یہ جرنی کنٹینیو ہے انشاءاللہ۔ جی
माशाल्लाह आप राइटर भी हैं और लिखते भी हैं, आपके आर्टिकल्स भी आप शेयर करती रहती हैं। तो लिखने का शौक कब से है और कब एहसास हुआ कि आपका रुझान इस तरफ है, और किन किन टॉपिक्स पे आप लिखते हैं? मैं छोटी थी, क्लास 8 में थी, तब से लिखती थी। तब से कुछ अपने ख्यालात, अपने विजन, जिस तरह बच्चे का एक कैलिबर होता है, दिमाग की सतह होती है, उस हिसाब से लिखती थी, कुछ ना कुछ लिखती थी। और मेरी अम्मी जो है, एक जिसे कहते हैं ना फैंटेसी विजन रखने वाली माँ, वो मेरी मॉम है। और जब मैं वो चीजें उनको बताती थी ना, तो वो मुझे इतना अप्रिशिएट करती थी, इतना मुझे लगता था जैसे पता नहीं मैं कितनी बड़ी राइटर हूँ। और शायद यही अप्रिसिएशन जो थी ना, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता उस चीज पे लेके आया। स्कूल में लिखा, कॉलेजेस में डिफरेंट टॉपिक्स पे। और अब मुझे लगता है कि मुझे जो चीज गलत लगे उस पे बोलना चाहिए, उस पे आवाज उठानी चाहिए। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे मैं खुल के नहीं, जिसे कहते हैं ना हम, खुल के नहीं बयान कर सकते चीजों को। उस तरह मुझे भी लगा कि मुझे अपनी आवाज को एक नाम देना चाहिए। मैंने इनवोक के नाम से एक आर्टिकल का सेशन शुरू किया, और उसमें डिफरेंट चीजें जो अच्छी थी उनको सराहा, और जो चीजें बुरी थी उन पे खुल के तनकीद की। और इसलिए खुल के तनकीद की क्योंकि वो मुझे पता था वो मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ यहाँ पर। और शायद इसी वजह से मुझे चीजों में और घुसने की, जो कहते हैं ना कि शुरू से चीजों के अंदर घुस के चीजों को जानना होता है, उन चीजों को जान के मुझे लगा कि ये जो चीजें ना, इनके बारे में लिखना चाहिए और कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। और बस ये शुरू से, जिसे कहते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं आपके अंदर शुरू से, मगर आपको ये वक्त बताता है कि आपने इस चीजों को कैसे यूटिलाइज करना आगे फर्दर लाइफ में। शादी के बाद बहुत सी चीजें मुझे लगा था कि शायद अब मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म हो गई है, मैंने बस अब बच्चे संभालने, किचन संभालना। ऑब्वियसली बहुत बड़ी एक जॉब है एक औरत के लिए, किचन, बच्चे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे बड़ी भी और सबसे पहली जिम्मेदारी थी। अगर उसके साथ साथ आप जब ये भूल जाते हैं कि आपकी अपनी लाइफ भी है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाते। जब आप ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर बहुत सी चीजें निकलना चाहती हैं, बहुत सी चीजें आपके अंदर से रोजाना आवाज देती हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, और आप वो चीजें दबाते जाते हैं, मगर एक टाइम आता है वो चीजें आवाज बन के इतनी लाउडली चीजें बाहर निकलती हैं कि फिर आप उन चीजों में गुम हो जाते हैं। अब माशाल्लाह मेरे बच्चे सेटल्ड है अपनी जगहों पे, अपने स्कूल वगैरह हर जगह जा रहे हैं। मैं बड़े कंफर्टेबल जोन में हूँ, और मैं वहाँ से फिर अपना हर काम करती हूँ। जो जो मेरी, जिसे कहते हैं ना, जो जो अंदर की ख्वाहिशात दबी हुई है, जो लिखना चाहती हूँ वो लिखती हूँ, जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ। पाबंदी कोई नहीं है ऐसा सच के ये नहीं लिखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मगर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक वुमेन के लिए इस दौर में कि आप जो चाहें कर सकती हैं। आप ऑब्वियसली हर औरत को पता होता है हमारी लिमिटेशंस क्या है, क्या नहीं है, मगर ये आज के दौर में मैं समझती हूँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक वुमेन के लिए कि आपके पीछे 4-5 हाथ हो, आपके पीछे हाथ वो हो जो आपके आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो आपको सपोर्ट करें, फिर एक औरत खुल के जी सकती है। बस मैं तो बोलती जाऊंगी। जी, इसीलिए आपको इनवाइट किया कि आपके बारे में हम जानें और आप ही बोलें। अच्छा, आप सना ये बताइएगा कि आप कासिम अली शाह साहब के लिए भी कुछ लिख रही हैं आर्टिकल, उसके बारे में बताना चाहेंगी? क्या उन्वान है और क्या उसका पस बेसिकली मंज़र? वो उनके लिए ऐसे आर्टिकल मैंने नहीं लिखा। बेसिकली हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि डिफरेंट जो मसाइल हैं हमारे माशरे पे, उस पे हम मिलके डिस्कशन करेंगे, और उसके बारे में जो एक नया इनिशिएटिव लेना, यानी अब आजकल हम जो जिंदगी में ज्यादा जरूरियात से ज्यादा जो हम लोग चादर दे के पाँव नहीं फैलाते, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रटेंड करते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा वो करते हैं, उससे ज्यादा जी। प्रिटेंडिंग और जो शो ऑफिंग है ना हमारे माशरे में, वो एक बहुत बड़ा नासूर बन गया, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो है ना वो दिन ब दिन झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है, झुकता जा रहा है। ये नहीं हो रहा कि कोई बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाए। जिस तरह बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको हम ना भी करें
तो जिंदगी कट सकती है। हम अपने भाइयों पे, अपने बाप पे बीइंग अ वुमन इतना भार डाल देते हैं, और उन चीजों को हम जरा नॉर्मलाइज तरीके से करना। और इनिशिएटिव कौन लेने वाला? इनिशिएटिव लेने वाले हम लोग जो मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो हम कर सकते हैं, मगर हम ना करें। अपनी शादियों पे इतने हंगामे, इतनी हल्ला गुल्ला, इतना पैसा, इतनी ज्यादा खर्ची ना करें, तो क्या हो जाए? वो पैसे अगर हम शो ऑफिंग कर रहे हैं तो वो हमारा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर जो लोग देखते हैं उनके, वो चाहते हैं कि हम ऐसा ही कैलिबर, हम ऐसा ही करें। फिर वो उनकी ऑब्वियसली हर लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि ये यूं होना चाहिए, शादी पे यूं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। अगर ये ख्वाहिशात अपने हस्बैंड से लगाया जाए कि एक नॉर्मल रूटीन में हस्बैंड को भी इतनी ही लिवरेज दी जाए, ये नहीं कि जाते साथ ही हस्बैंड को भी कहा जाए कि जी ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। हर बंदा इतदाल में अगर चले, जो कि हमारे हॉली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है कि इतदाल में चलोगे तो आपको, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उस चीज पे हमने एक इनिशिएटिव लिया मिलकर, तमाम राइटर्स ने कुछ लिखना था और कुछ ऐसी बातें, और खासतौर पे कुछ ऐसी चीजें लिखनी थी जो उन लोगों के लिए जिनको समझना है। मैंने अक्सर देखे हैं शादियों पे, एक नॉर्मल सी फैमिली है, वो अपनी बेटी को इतना भर भर के जहेज देते हैं, सारी जिंदगी बाप की उस जहेज बनाने में लग जाती है। ये कहाँ की इंसानियत? मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं नॉर्मल सा जहेज लेके आई थी, तो क्या मेरी शादी नहीं हुई या फिर मैं एक उसमें नहीं? ठीक है, एक नॉर्मल बंदे को इतदाल में रहना चाहिए। जितना बंदा, मैं जितनी फैमिली में गई हूँ, एक फैमिली है हमारी उसमें फैमिली में ही, तो उन लोगों की वो गोल्ड का उनका कारोबार है, मगर उन्होंने अपनी बेटी को गोल्ड नहीं पहना है। क्यों? क्योंकि वो एक रस्म कायम करनी चाह रहे थे कि इस चीज को, ये जहालत की बातें हैं भाई। जो है माँ बाप के पास बेस्ट, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने बच्चों को नहीं देते। अगर अपनी जरूरत और अपने कंधों से ज्यादा भार उठाना कहाँ लिखा हुआ है? अब इन्हीं चीजों पे हमने थोड़ी सी आवाज उठाई है, और चाहते ये हैं कि आज की जो न्यू जनरेशन है, जो नए लड़के लड़कियां इस दौर में आ रहे हैं, एक कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ब्रांड और ये ना बनाए कि भाई फलाने ब्रांड, फलाने इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा हुआ है, फलाने। ठीक है, जो चीजें हैं वो आपके पास है, आपकी अपनी तरबियत, आपके घरों की तरबियत और आपकी ये सब चीजें जो है, ये आपके पास आपका विरसा है, ये आपकी सकाफत है। आप किस फैमिली से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका आपका ये चीजें कहते हैं कि ये आपका, आपने गेन किया पूरी जिंदगी। ये कोई चीज नहीं है कि मैंने फलाने ब्रांड का सूट पहना हुआ है, मैं फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी को छोटा करते हैं। इन चीजों के ऊपर बस थोड़ा सा हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से भी ये चाहते हैं कि बहुत से लोग, लड़के लड़कियां जो नए आ रहे हैं, इन चीजों को, ये बहुत छोटी चीजें हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को अपनी अपने, जिसे कहते हैं ना कि माँ बाप का क्या दिल नहीं करता कि अपना दिल, अपना हर चीज निकाल के अपने बच्चों को दे दे। अगर ओवर बर्डन जो लोग हो के, और जो लोग पूरी जिंदगियों की कमाइयां जहेजों में दे देते हैं, वो चीजें जो है ना, वो उसको प्लीज अवॉइड करें। कि लड़के करें, लड़कियां भी बोले, लड़कियां भी कहें कि ऑब्वियसली हर बंदे को पता होता है कि हमारे घर का माहौल ये है, हमारे घर की ये गुंजाइश है, उसकी लिमिट्स में रह के अपनी चीजों को डिडक्ट करें। ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई, और बहुत ज्यादा हमने सुनी, और बहुत ज्यादा उसे सहा भी। अगर आपको टाइम नहीं रहा, अब वो दौर भी नहीं रहा, सब घर बस जाते हैं, सब जिंदगियां चलती रहती हैं, मगर अपने बाप भाई को इतना परेशान नहीं के आलम में छोड़ के ना जाए। अपनी बेटियां बोले, लड़के बोले, लड़कों की माएँ बोले, उतनी आवाज इस चीज को बुलंद करें कि सिर्फ जहेज के एंड से नहीं बोल रही हूँ, बाकी हर एंड से वुमेन्स के अंदर भी बहुत सी चीजें, ये इस ब्रांड की ये चीज पहननी है, इस ब्रांड की ये चीज लेनी है, इस ब्रांड की ये चीज करनी है। ये सब चीजें जो ना, ब्रांडिंग जो है ना, वो आपका अपना इंडिविजुअल सेल्फ जो है ना, छुपा देती है। मतलब आप कहाँ, आप
आपकी ذات, आप खड़े हुए हैं, आपका पता होना चाहिए कि आप ब्रांड है, ना कि जो आपने पहना है वो ब्रांड। बस इसी चक्कर में हम लोगों ने सबने मिलके आर्टिकल्स लिखे हैं। अब इंशाल्लाह होप टू द बेस्ट कि अच्छा हो और हर बंदा एक एक स्टेप उठाए। इवन यहाँ तक कि ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हम नलके का पानी ही जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कोशिश करें कि इसको थोड़ा इस्तेमाल करें, ताकि बहुत सी चीजें जो है ना यहीं से छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक मुआशरा बनता है। और अगर हर बंदा इस पर अमल करे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आगे तक जा सकती है आवाज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। महक अली देख रही हैं, वो कह रही हैं कि टैलेंटेड राइटर एंड सुपर पर्सनालिटी। थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपने मतलब ये चूज़ किया है, और अगर हम इस पे हर एक इंसान अपने लेवल पे काम करना शुरू कर दे तो हमारी भी और दूसरों की भी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है, और बड़ी शादी के मामलात और सारे के मामलात बहुत आसानी से और आसान तरीके से तय पा सकते हैं। तो उसमें आप क्या सजेस्ट, अच्छा समटाइम ये भी तो एक इंटरनल फियर आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, और अगर लोग से मुराद भी अगर रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, अगर आपके पेरेंट्स मान भी जाएं तो लेकिन उनको यही होता है कि जब आप ऐसा ना हो कि आगे प्रॉब्लम हो, पेरेंट्स क्या कहेंगे, इसको कैसे मतलब डील किया जाए, इसको कैसे क्या कहते हैं ओवरकम किया जाए इस ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। ये एक बात बहुत बड़ी है कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं। मैंने क्या खाया है, मैंने कब सोना है, मैंने कब उठना है, ये हम अपनी जात के लिए तो जीते ही नहीं है ना। हमारा सबसे बड़ा इशू यही है इस मुआशरे का कि हमने दुनिया को दिखाना है। आजकल लोग रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे थे तो स्टेटस लगा देते हैं, जी नानी जहाँ पे खाना खाया है। दुनिया को क्या लगे आपने खाना खाया है? कितने बड़े ब्रांड में बैठे हुए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और आप तो मैं कहती हूँ कि हर दूसरे लोग हंसते हैं इन बातों पे। मुआशरे में इतनी अवेयरनेस हो गई है, हमारी फैमिली में लोग क्या बातें करेंगे, क्या लड़की को क्या दिया है, क्या लड़की पहन के गई है, ये सब चीजें इतनी की छोटी है ना। आपने बल्कि मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया, उसमें एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कहते हम सारे जमाने की चीजों में बच्ची को तोल के भेजते हैं, हम ये नहीं पूछते कि क्या उस बच्ची का उस लड़के के साथ ब्लड ग्रुप सिमिलर है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि उन्होंने उठाया। और उस वक्त दुनिया, सारा जमाना सिर्फ उस शादी पे आया। शादी के बाद उस सारे जमाने ने वापस आके नहीं पूछना, हाँ जी आपकी बेटी अपने घर में रह रही है आराम से, या फिर क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। किक आउट करें ऐसे मुआशरे को, और ऐसे मुआशरे की कोई बात जो करता है ना उसको अवॉइड करें, यहाँ से सुने यहाँ से निकालें, क्योंकि हम इस मुआशरे में रह रहे हैं टेम्परेरी। जिंदगी आपकी है, जिंदगी मेरी है, मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, तीसरे बंदे को कोई हक नहीं होना चाहिए उसका फैसला करने का। मैं अपने बाप को या अपने भाई को उस परेशानी के आलम में नहीं देख सकती कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे। उनकी अपनी जिंदगी नहीं है। फिर वही माशरा आ जाता है कि माशरा क्या कहेगा जी, ओहो कहने दो जो कहती है, दुनिया कब चुप रहती है। मैं शेर ये मुकम्मल कर लें आप। शेर बस इतना ही था, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। बस आगे से मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था। अच्छा सना, ये बताइएगा, आप होस्टिंग भी करती हैं और मुझे भी मौका मिला, ये शर्फ मिला कि मैं भी आपके प्रोग्राम में गया था तकरीबन 3 महीने पहले मार्च में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये आपने होस्टिंग कब से स्टार्ट की और इसका रुझान आपको कैसे पैदा हुआ कि आप होस्टिंग भी कर सकती हैं, और इसमें आगे क्या प्लान्स हैं आगे? अच्छा, वही बात आ गई कि शुरू से ना कुछ चीजें होती हैं जो आपके उस्ताद आपको बता रहे होते हैं और आपकी घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको बता रहे होते हैं। मैं बोलना शुरू होती हूँ तो मैं किसी को बोलने नहीं देती। तो इस मामले में मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते होते थे, कहते लो
اب شروع ہو گئی ہے. اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا اس وقت کی وہ خامی تھی مگر آج کی یہ کوالٹی ہے کہ میں بولتی ہوں اور پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ محسوس ہوا. مجھے یاد ہے میری اکنامکس کی ٹیچر ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ یہاں مجھے کلاس نہیں لگ رہی ہوتی, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی شو چل رہا ہے میری موجودگی میں. تو آہستہ آہستہ چیزیں جو میں یاد کرتی ہوں کہ میرے ٹیچرز یہ کہتے ہوتے تھے, میری امی یہ کہتی ہوتی تھی, وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو چیزیں آپ کو پتہ چلتی تھی. خیر یہ ایک ایونٹ پہ میں گئی تھی, ہمارا اس کا SPRF کا ایونٹ تھا, وہاں پر مجھے نظائر نیوز کے آنر ملے, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم کہا کہ آپ کر سکتی ہیں ہوسٹنگ وغیرہ. میں نے کہا سر میں نے اس سے پہلے کبھی کیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ کر کے دیکھیں, ٹرائی کریں. خیر ہی واز اے گریٹ پرسن کہ جس بندے نے جسے کہتے ہیں نا بالکل یہ ناڑی بندے کو اٹھا کے بٹھا دیا کہ نہیں آپ کریں. اور ان کے کانفیڈینس کو, دیے ہوئے کانفیڈینس کو میں آج بھی فیل کرتی ہوں کہ اگر کوئی انسان آپ کو ٹرسٹ کرتا ہے یا آپ پہ کانفیڈینس دیتا ہے تو وہ کانفیڈینس آپ اس کو نا اچھا پے بیک دیں. آپ کو ہمیشہ یہ کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو آنر کریں. میں آج بھی ان کو بہت آنر کرتی ہوں, زاہد عباس نقوی صاحب, ان کو آنر کرتی ہوں کہ اس شخص نے, میں غلطیاں بھی بہت کرتی ہوتی تھی مگر انہوں نے کہا نہیں کرنا ہے. میں نے کہا اوکے. اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر ڈفرینٹ ایجوکیشنل ویب سائٹس کے ساتھ کام کیا اور بس ایسے ہی پھر کرتی رہی, چلتی رہی. بول لیتی ہوں اس وجہ سے ہوسٹنگ کی طرف آ گئی تھی. زبردست. آگے یہ بھی بتائیے گا کہ میرڈ وومین اینڈ موم اینڈ پروفیشنل لائف, تو کیسے مینیج کرتی ہے سارے اپنی لائف کے ڈفرینٹ رولس کو؟ اچھا, سب سے پہلی بات یہ میں نے آپ کو کہنی تھی کہ ایک عورت کے لیے, میرے لیے, میرا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ میرے بچے. میں ہمیشہ جب بھی بات کرتی ہوں کیونکہ میں نے ان کا جواب دینا ہے, باقی کسی بھی چیز پہ میں نے جواب نہیں دینا ہوتا. اگر کوئی الٹی پلٹی کام ہو جاتے تھے ٹھیک ہے جی اوکے سلیوٹ, بٹ بچے جو ہے نا وہ میرا اینڈ ہے اور سب سے پہلے میں ان کو دیکھتی ہوں کیونکہ میں سوچتی کہ میری کل کائنات یہی ہے, آگے سے میرا فیوچر یہی ہے. ان کے بارے میں بچے, ان کے ساتھ 1 گھنٹہ اسپینڈ کیا. میں ان ماؤں میں سے نہیں ہوں جو سارا دن اپنے بچوں کو چپکا کے ساتھ رکھتے ہیں. پریکٹیکلی میں نے ان کو زندگیاں بھی پریکٹیکل, اٹھو اپنا یہ کرو, اپنے بیڈ صاف کرو, اپنا ساری روٹین زندگی کی جو وہ ہے ان کے پاس ہے. 1 گھنٹہ دیا, 2 گھنٹے دیے, مگر وہ ہمارا لرننگ پروسیس. سارے دن کی روٹین بچوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے ساتھ آپ نے کیسے دن گزارا, کیا کیا مسئلے مسائل آئے, پھر اس کے بعد اس کا حل. اور یہ انہیں چیزوں کو میں ایسے مینج کرتی ہوں کہ ان بچوں کو فیل نہیں ہوتا کہ ماما نکل گئی ہے, ماما باہر چلی گئی ہیں. ہر عورت کے لیے بے شک وہ جتنی مرضی, میں نے دیکھا بے نظیر کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بہت سی جگہوں پہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. ہر عورت کے لیے سب سے بڑی پریفرنس اس کا گھر, اس کے بچے, کیونکہ یہ ذمہ داری عورت پہ فرض ہے. اگر مرد کے کمانا فرض ہے تو عورت کی ذمہ داری ہے بچے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اپنے آپ کو گروم کریں, اپنی چیزوں کو دنیا تک پہنچائیں, لوگ یعنی اپنی سکلز کو دوسروں تک پہنچائیں اور بتائیں دنیا کو کہ بھائی ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. مگر یہ کہ سب سے پہلی پریفرنس جو ہے نا وہ آپ کے بچے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو بڑا ہی آرگنائز طریقے سے رکھا, مطلب ان کو بتا دیا کہ بیٹے آپ کا یہاں پر بریک فاسٹ یہاں پر رکھا ہوا ہے, لنچ یہاں پر آنا ہے, یونیفارم ہینگ کر کے رکھنا ہے. ان ماؤں میں سے نہیں ہوں میں بالکل کہ بھائی بالکل ہی ساتھ ہی اٹھو جی چلو جی نہلا رہی ہیں, دھلا رہی ہیں, یہ کر رہی ہیں. آپ خود کرو. بیسکلی پری اسکولنگ کا مقصد جو تھا نا وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے, میں نے پری اسکولنگ سیکھی ہی صرف اس لیے تھی کہ میں نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا تھا. وہ دور ختم ہو گئے ہیں. اب بچوں نے, بلکہ میرے بہت سے کام میرے بچے کر دیتے ہیں, میری بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میرے بچے کر دیتے ہیں, اور یہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ مطلب میرے ہیلپنگ ہینڈز ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سنا, اپنی ہابیز کے بارے میں بتائیے گا. لکھنے کا بھی شوق ہے, بولنے کا بھی شوق ہے, اس کے علاوہ کیا ہابیز ہیں, یا خود کو انٹرٹین کرنا ہو تو کیا کرتی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اچھا, میری جو ہابیز ہے نا
लाइट गई हुई है। मेरी जो हॉबीज है ना, म्यूजिक और भी करती हैं? म्यूजिक नहीं, बस वैसे ही कभी कभी शौक में या कुछ इस तरह से। म्यूजिक मेरी हॉबी है। और बाकी नॉर्दर्न एरियाज में फिरना ये मेरी कमजोरी है। अच्छी हवा चल रही हो तो मेरा दिल चाहता है मैं उड़ना शुरू हो जाऊं, और मौसम अच्छा हो तो वो बहुत असर करता है। यानी थे सारे शायराना ज़ौक, मगर फिर कोई अच्छी पोएट्री मुझसे हो नहीं पाई। फिर मैंने कहा कि चलो। सही। बहुत शुक्रिया सना आपका आने का प्रोग्राम में, और यकीनन आपकी तरफ लाइट गई हुई है काफ़ी देर से, और उसके बावजूद भी आपने मैनेज किया और बहुत अच्छे तरीके से अपने बारे में हमें बताया। और जिस पे आप लिख रही हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है और वक्त की ज़रूरत है, और उस पर बात जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये बहुत पुरानी एक रस्म चलती आ रही है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, और इंसानों को अहमियत देने की ज़रूरत है रस्मों की बजाय। और लेकिन जिस तरह आप लिख रही हैं और आपके और कोलीग्स राइटर हैं इसी तरह लिखते रहें, उम्मीद है कि नई जनरेशन में ये सोच पैदा होगी और वो इंस्पायर होंगे, इसको फॉलो करेंगे और आसानियाँ पैदा करेंगे माशरे में एक दूसरे के लिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सना, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।